بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میں انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. کراچی کے حقوق کی بات ہوتی ہے، بلدیاتی قوانین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بل پاس ہوتا ہے، بل کو چیلنج کیا جاتا ہے، آخر میں اس میں کچھ شکوک کو کالعدم بھی کہہ دیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہار جیت کا معاملہ کیا ہے؟ جب سب کا موقف یہی ہے کہ ہم کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جنگ کیسی ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے تو ایم کیو ایم کہیں کریڈٹ لے جانا چاہتی ہے، کہیں جماعت اسلامی کریڈٹ لے جانا چاہتی ہے. آخر مسئلے کا حل کیا ہے؟ جبکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ سندھ حکومت کا علاج صرف اور صرف گورنر راج ہے. ان کچھ پوائنٹس پہ ہم آج پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب محترمہ سیدہ تحسین عابدی صاحبہ، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. ان کے ساتھ موجود ہیں نعمان رضوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. اور ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہوں گے سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. سب سے پہلے سلمان مجاہد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جب کراچی کے حقوق کی بات آپ بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم حق میں بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی بات کر رہی ہے، پی ایس پی بھی بات کر رہی ہے، تو کانفلکٹ کھڑا کہاں ہو رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کون ٹھیک ہے، کون غلط ہے؟ عوام اس وقت کنفیوز ہو چکی ہے کہ کس کی طرف جایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا صاحبہ. دیکھیں ثنا صاحبہ، اب یہ بات اس ٹائم کلیئر ہے اور ویسے روشن کی طرح آپ یہ سامنے ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ کنسرن اس شہر کے لیے اسپیسیفکلی ادر پارٹس آف سندھ کے لیے کوئی نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے 2017 میں آئین کا آرٹیکل 140A جو مقامی حکومتوں کو جو تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، جو بلدیاتی محکمے ہیں ان کو امپاور کرتا ہے، بلدیاتی نمائندوں کو امپاور کرتا ہے. اور یہ بھی میں اپنے قارئین کے لیے یہ بتاؤں کہ 18ویں ترمیم کا جب یہ ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا تو ایف کیو ایم نے ہی اس وقت آرٹیکل 148 کا اس میں انڈکشن کروایا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں تھرو 18 امینڈمنٹ. پلس یہ کہ 2017 میں ہم پٹیشن میں گئے تھے، اس لیے گئے تھے سپریم کورٹ کہ آپ تشریح کریں اور بتائیں سندھ گورنمنٹ کو، ڈائریکشن دیں کہ 140 سے کہتا ہے وہ آپ کو فائنینشیل پاور دیتا ہے، وہ آپ کو ایڈمنسٹریٹولی پاور دیتا ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹو پاور دیتا ہے. لیکن شومۂ قسمت اور آئرنی آف دا فیکٹ از دیٹ کہ سندھ گورنمنٹ نے پچھلے 13 سالوں سے تمام ہی جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں وہ اپنے پاس ایکومولیٹ کر لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. ایون کہ کچرا اٹھانے کا اختیار بھی وہ اپنے پاس لے گئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ 2013 کا جو ایس ایل جی آیا تھا اس میں اگر آپ پڑھیں گے اس کے اوریجنل ڈرافٹ کو تو اس میں تمام پاور جو ہے منتخب نمائندوں کو دیے گئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 2015 میں تو 2014 اور 15 میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے سیکشن 74 اور 75 کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے تمام جو ادارے ہیں، کے ڈی ہو گیا، ایل ڈی سی ہو گیا، ماسٹر پلان ہو گیا، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے، واٹر بورڈ، یہ تمام ادارے جو ہیں وہ میئر کے انڈر ہوتے تھے. لیکن اس سے حکومت اپنے پاس لگی ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو انہوں نے اپنے لیے ڈالا تھا. اس کے بعد میئر کو، منتخب نمائندوں کو، بی ایم سی کے چیئرمین کو کرنے کو کچھ نہیں بچا. لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے، کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے، ان کے ہم پاکستان کو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کراچی کے عوام کے لیے تحفہ ہے. اور ایک سر کہیں ایسا تو نہیں کہ کریڈٹ آپ بھی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو کریڈٹ ہے نا ثنا. ہم نے تو 2017 میں فار دی تو سر یہ امپلیمنٹیشن ان لوگوں نے کیا کیا جو 29 دن دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ میں پہلے بیک گراؤنڈ تو آپ کو بتا دوں نا کہ ہم تو 2017 سے اس میں چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں. وہ الگ بات ہے کہ پینڈنگ رہا معاملہ. اصل میں تھوڑی سی کچھ تو جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں اور پورا پروگرام ہے اس پہ بات کرنے کے. لیکن ایک کوشچن جو ریز ہوتا ہے وہ یہ، کل ہمارے پاس پیپلز پارٹی کے حوالے سے قیادت موجود تھی، اقبال سان صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ بغض پیپلز پارٹی میں ہوا ہے. 2017 کا فیصلہ یہ اچانک جسٹس گلزار احمد صاحب اچانک کیسے کر لیتے ہیں؟ آخر کیا ہوا؟ کہاں سے اشارہ ملا ہے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب جن کا تعلق بھی کراچی سے، یہیں انہوں نے وکالت شروع کی اور انتہائی آنیسٹ اور شریف النفس انسان ہے. لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ اکتوبر 2020 میں اس کا جو ڈیسیشن تھا وہ ریزرو ہوا تھا. اب وہ ریزرو یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کورٹ اس کو کب اناؤنس کرتا ہے. لیکن جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہے کل جاتے جاتے فیصلہ کر گئے اور ہم شکر گزار ہیں عدلیہ کے بھی اور عوام کے بھی کہ انہوں نے یہ
फैसला किया। जहां तक आपकी बात है कि 29 दिन का धरना हो या 26 दिन का धरना हो, तो देखें 29 दिन का धरना और 26 दिन का धरना या अभी 3 दिन से धरना चल रहा है, एमक्यूएम के 2 घंटे के धरने ने तमाम को जीरो कर दिया। उसी रात देखें आप भागे भागे लोग जाते हैं, नेशनल लीग में भी रेड जोन में है, वहां जाते हैं, माहिदा तक तैयार करते हैं, तकरीर होती है, धरना खत्म हो जाता है। तो ये तुम देखें, एक वो जो जमात इस्लामी की जो आपने बात की, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनका वहां पे धरना जारी और सारी था और उन्हें छेड़ा ही नहीं गया। अगर रेड जोन का इशू था तो आपने एमक्यूएम की माओ बहनों पे जो है वो लाठियां बरसा दी, डंडे बरसा दिए, टीयर गैस कर दिया। तो लेकिन फिर भी चलो, हमने कराची के अमन के लिए पहले भी कुर्बानियां दी हैं, सब्र का घूंट किया है पाकिस्तान के अमन के लिए, और अभी भी हमने कराची के अमन के लिए ही, पाकिस्तान के अमन के लिए ही कुर्बानी दी और सब्र का घूंट किया। और हमारी क़यादत ने जो है कारकुनान को कहा कि किसी भी इश्तिहार में आपने नहीं आना। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आईन पाकिस्तान है, जो आपका जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है यूएनओ का, वो आपको उसका जो सेक्शन 6 है, वो ये कहता है कि किसी भी किस्म का ब्रूटल फोर्स यूज नहीं होगा, टॉर्चर नहीं होगा, जो पीसफुल असेंबली होगी। आइन सर इस पे बात करेंगे। मेरे से प्रोग्राम में इस वक्त सैयदा तहसीन आबिदी साहबा मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम, ये क्या है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इस वक्त बहुत सी स्टेक होल्डर जमातें जो हैं वो मैदान में उतरी हुई हैं। एमक्यूएम अपना मौक़िफ़ लेके आ रही है, जमात इस्लामी अलग मौक़िफ़ लेके आ रही है, और बड़ी एक बात इन्होंने की सलमान मुजाहिद साहब ने कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई धरना हो रहा था। तो ऐसा कुछ है क्या कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपने बिठाया हुआ था और जैसे ही जो है एमक्यूएम का होता है सिलसिला, उसमें आपकी तरफ से आता है, एक इश्ताल पैदा होता है और एक बदमज़गी का वाक़या आता है जो कि तारीख़ में याद भी रखा जाएगा और बुरा वाक़या हुआ था। क्या कमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये नहीं पता सलमान साहब ने कौन से धरने को कहा है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि उन्होंने पीएसपी के धरने की भी बात की है, जमात। अब देखिए इनकी कहाँ से इनकी सोर्सेज हैं कि इनको पता चल रहा है। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने किसी के साथ भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग की हुई है कि रेड जोन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपको भी पता है कि सेशंस होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत, उनको अल्टरनेट वेज से जाना पड़ा। मतलब हमने तकलीफ उठाई, लेकिन हमने देखा कि वो पीसफुल लोग हैं, वो किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, वो किसी पे डंडे नहीं उठा रहे हैं, वो किसी पे पीछे नहीं भाग रहे डंडे ले लेके, आराम से बैठे हुए। तो इस वजह से हमने उनको बैठे रहने दिया। अच्छा, आपका जो दूसरा सवाल था कि बल्दियात के, देखिए हम डे 1 से कह रहे हैं कि हमारा ये आसमानी सहीफ़ा नहीं है। अगर आपको लगता है इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, हम इस पर चेंजेस लाने को तैयार हैं, हम अमेंडमेंट्स करने को तैयार हैं। देखिए रोड्स पे इंसान जब निकलता है, हम सुन नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सुनने को तैयार हैं। लेजिस्लेशन जो होगी, अमेंडमेंट्स जो होंगी, वो रोड पे आके नहीं होंगी, वो असेंबलीज़ में ही आके होंगी। जब आपकी नुमाइंदगी मौजूद है असेंबलीज़ में, जमात इस्लामी की गो के काम है, सिर्फ एक उनके शायद MP हैं, लेकिन उनकी नुमाइंदगी है। जब है, हम सुनने को, जो बिल लेके आए हैं वो आपसे सुनने को तैयार हैं। आप जाके रोड्स पे जो है मुजाहरे कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं तो और क्या है सना। मुझे तो इसके अलावा अगर आप सिंसियर होते हैं, बखौल आपके कि जी आप बड़े सिंसियर हैं कराची के लिए, आवाम के लिए, तो कराची के आवाम के पास गैस नहीं है, आपको उस पर बात करनी चाहिए थी। महंगाई इतनी है, उस पर बात करनी चाहिए थी। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पिछले 1 साल में 20 लाख से ज्यादा लोग एक मौक़िफ़ ये भी आया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसको हम रिव्यू में डालेंगे। देखिए डेफिनेटली हम बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, हमारा भी तो राइट है ना कि जहाँ पे हम डे 1 से, मैं अगेन वही बात करूंगी कि हम चेंजेस करने को तैयार हैं। आप हमें जस्टिफाई करें कि जी आप जो आप रिजर्वेशन अपनी आप दिखा रहे हैं, हमें जो रिकमेंडेशंस लेके आ रहे हैं वो इस सूबे, इस शहर के लिए बेहतर है, यहाँ के लोगों के लिए बेहतर है, हम चेंज कर देंगे। अब चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर्स हों या इनकी तमाम लोगों की फरमाइशें हों, जहाँ हमें बेहतरी लगेगी हम करेंगे। और हमारा ये राइट है डेमोक्रेटिक कि हम भी कोर्ट्स में जाएं जहाँ हमें लगता है कि चीज़ें हमारे लोगों के लिए बेहतर नहीं है, इस सूबे, इस शहर के लिए बेहतर नहीं है। नोमान हमारे साथ मौजूद है और नोमान बड़ा बेतकान से बोलते हैं। वो जब वो बात कर देते हैं उसके बाद उनकी बात से बात बहुत ज़्यादा निकलती है। नोमान, ये मुझे बताएं कि अचानक से एमक्यूएम के जलसे में धरने पे बदमज़गी का वाक़या होता है, हमारी माओ बेटियों पे भी डंडे बरसाए गए और एक बदमज़गी का वाक़या हुआ। सिंध गवर्नमेंट की तरफ भी उसके बाद एक दलील है कि हमने ये काम क्यों किया। मुझे ये बताइए कि अचानक से फिर जमात इस्लामी के साथ भी गुफ्त शुनीद होती है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। ये पहले क्यों नहीं मुज़ाकरात कामयाब हुए? ये वाक़े के बाद ही क्यों मुज़ाकरात कामयाब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये सारे सवाल थे आपके फैसले आने से पहले जो चल रहे थे। फैसला, ये जो फैसला आया ना, असल में ये फैसला कौन है? देखिए बहुत से चेहरों से नकाब उतर गए और यही फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये फैसला आपको बज़ाहिर तो बल्दियाती हवाले से लग रहा है, लेकिन ये पहला कदम है। देखें बात यह है कि जो लोग कहते थे, ये बात हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इन हाउस, उन्होंने ये बात बोली कि हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इस फैसले से वो वाकई सोचने पे मजबूर हो गए और वो जो माइंडसेट है बिगिनिंग से इंटीरियर सिंध में एक एंटी स्टैब्लिशमेंट, आप देखिए कि जब मैं आपको बताऊं, देखिए बात ये है कि जिसके भी चेहरे से नकाब उतरती है, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, उसकी नाअहली,
मतलब उसकी शर्मिंदगी या उसकी बेवकूफ़ियाँ या ایون یہ کہ اس کی جو ناکامیاں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں تو وہ بہت آ جاتا ہے. اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ سندھ گورنمنٹ بلینڈرز کرنے جا رہی ہے. مطلب وہ جو ہے اس حوالے سے کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسے کام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ اس میں بوکلاٹ کا شکار ہے. بالکل بھوکلاٹ کا شکار ہے اور بلینڈر کرے گا. اچھا آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن یہاں پہ بریک ہے, بریک کے فوراً بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر نعمان کی طرف واپس آتے ہیں. ایک شارٹ بریک. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. نعمان سے بات ہو رہی تھی. جی نعمان, یہ کون جو ہے چہرے سے نقاب اترا ہے, کون جو ہے وہ بلینڈرز کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کے بھی چہرے سے نقاب اتر جاتا ہے اس کی ناکامی کا تو وہ بلینڈرز کرنا شروع کرتا ہے اور بھوکلاٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیے گا, دیکھیں پیپلز پارٹی یہ بات جانتی ہے بہت اچھی طرح, اس کو یہ بات پتہ ہے اور یہ مختلف جگہوں پہ محفلز میں یہ باتیں ہوتی رہیں. کہیں سندھو ڈیش کی باتیں بھی کی انہوں نے اور کہیں یہ بھی ان ہاؤس بلکہ یہ کہہ دیا انہوں نے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ اور سوچنے پہ مشغول ہو جائیں. سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایک اور بات کہہ رہی کہ دیکھیں وہاں پر لاٹھی چارج ہوئی. دیکھیں سندھ میں مستقل باشندے 2 اکائیوں پر مشتمل ہیں, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے, کسی کو بھی انکار نہیں ہے. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کی تہذیب میں اور جو شہری علاقے کی تہذیب ہے, ثقافت ہے, اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ مجھے بتائیے, ڈنڈوں سے ثقافت کو سن تو لیجیے, میں پوری بات بتاؤں گا آپ کی سن تو لیجیے, آپ پوری بات بتاؤں گا میں آپ کو. بات یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں جو خواتین کے ساتھ سلوک ہوا جاتا ہے, کاروکاری کا الزام لگا کے مار دیا جاتا ہے یا جرگے میں فیصلے کر کے 12 سال کی بچی کو 65 سال کی, میں پوری سن تو لیجیے, دیکھیں میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں میں سندھ کی ثقافت, میں ثقافت کب کہہ رہا ہوں, عورت کی عزت نہیں کی جاتی ہے جو تو میں چلے ثقافت میں نہیں کہہ رہا, ایک پریکٹس تو ہے سندھ میں, عام سی پریکٹس ہے کہ قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے, تو وہ عورتوں کا احترام کیا کریں گے. ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کروں, جتنی میں نے سندھ کی عورت کو, سندھی جو بولنے والی عورت کو طاقتور اور پڑھا لکھا میں نے اس عورت کو دیکھا ہے, اتنا میں نے کسی کو نہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں آپ پورے. اگر آپ دیکھیں تو پریکٹس کیا ہے ہمارے سندھ میں, تو اگر انہوں نے عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ اٹھایا تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, انہوں نے اپنی جو ہے اعلیٰ یہ ضرف دکھایا, انہوں نے اپنا جو ان کا ضرف تھا. بات تو یہاں ختم ہو گئی. ان کا بات کرنے کا حق ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا دوسری بات, پوری بات سنیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب سندھ کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ پی ایس پارٹی کو انارکی سوٹ کرے گی اس وقت. جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, جو معاملات طے ہو رہے ہیں, یہ تو ابھی پہلا فیصلہ آیا ہے, یہ تو سلسلہ شروع ہو جائے گا. اب پی ایس پارٹی نے جو اینٹی اسٹیٹ ہے انٹیریئر سندھ میں, جو سندھو دیش کی بات کرتے ہیں, ان کو فعال کریں گے. آپ آنے والے وقتوں میں دیکھ لیے گا یہ بلینڈر پہ بلینڈر کریں گے. پھر پلس ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو, دیکھیں جس کا مزاج حاکمانہ ہو اور غلام بنانا جس کا مزاج ہے, تو جو ان کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے نا, وہ بھی خوش نہیں ہوتے. سندھ میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہونے جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں. اچھا سندھ میں ویکیوم کے بعد ہو جائے گا. نہیں دیکھیں سندھ میں ویکیوم کیسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیں مسلم آنے والے وقتوں میں مسلم لیگ کے اتنے دھڑے نہیں بنے جتنے پی ایس پارٹی کے بننے جا رہے ہیں. دیکھیں جب یہ بلینڈر پہ بلینڈر کریں گے اور جیسے کہ معاملات شروع ہو گئے, یہ تو پہلا سٹیپ ہے. یہ تو بلدیاتی ایک جو انہوں نے بل تھا چیف جسٹس صاحب نے, ان کی مہربانی کے انہوں نے کر دیا. آنے والے وقتوں میں پی ایس پارٹی کے ایک ایک کر کے تمام نقاب اتار دیے جائیں گے, اور جو انہوں نے ظلم اور بربریت سندھ میں مچائی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے آئے گا. آپ چیف جسٹس کی مہربانی کہہ رہے ہیں, کوئی جو ہے اس کو وزیر اعظم کی کامیابی کہہ رہا ہے, یہ بھی ایک کانفلکٹ ہے. کیا بات اس پہ جو ہے میں سلمان سے بات کروں گی, لیکن پہلے میں آتی ہوں تحسین کی طرف. جی مجھے سر آپ کمپلیٹ کرنے دیجیے گا, کیونکہ نعمان بھائی نے بڑے بڑے الزام لگائے ہیں, اسپیکولیشنس پہ بات کر رہے ہیں, پریڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے. تو میں ایک بہت نارمل انسان ہوں, مجھے کوئی ایسا علم نہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے کہ میں مستقبل کا حال بتاؤں, جو کہ نعمان بھائی بتا رہے تھے, بہت یقین سے بتا رہے تھے. اب یہ کہیں نا کہ ہو سکتا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری انہوں نے ایک کلچر کی انسلٹ کی ہے جو کہ 5000 سال سے پرانا کلچر ہے. مطلب یہ مطلب بلو دا بیلٹ باتیں ہوتی ہیں. آپ کو دوسرے لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کسی کلچر کو. کیا پورے سندھ میں تمام سندھی جو کیا وہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے؟ آپ ہماری دشمنی میں تمام سندھ کی بے عزتی کر رہے ہیں, ان کے کلچر کو انسلٹ کر رہے ہیں. مطلب دس از ویری رانگ. آپ کو کم از کم نیشنل ٹی وی پہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ڈنڈے برسا دیے, سندھ کا ایک کلچر ہے. آپ کو کس نے کہا کہ وہ جو جتنے پولیس والے تھے وہ سارے جو ہیں وہ سندھی تھے؟ مطلب اس طرح کی گفتگو کرنا, مطلب مجھے یقین کریں بڑا افسوس ہوا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اس طرح کی گفتگو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ان کو آرڈرز دیے گئے تھے, اور دیکھیں نہیں نعمان کے
सारी बातों से मैं भी agree नहीं करती। आपने भी जो है वो इसको मॉनिटर किया होगा, जो इंसिडेंट हुआ कि किस तरह हमारे मिनिस्टर्स जो है, हमारी लीडरशिप जो है वो एमकेएम के लोगों के साथ कांटेक्ट में थी, एडमिनिस्ट्रेशन उनको मना कर रही थी, वीडियो क्लिप्स आए हैं कि जी देखिए वहां नहीं जाएं, वहां टीम्स ठहरी हुई है, वहां आपको एंटर नहीं होने देंगे, जबकि इनका रूट प्लान भी नहीं था, इनको तो कहीं और जाना था, प्रेस क्लब जाना था, ये वजीर आला हाउस, वो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, वो टीवी पे क्लिप्स आ चुके हैं, फिर डंडे कौन था उसके भी वीडियो क्लिप्स आ चुके हैं कि एमपीए साहब किस तरह डंडे बरसा रहे थे, मतलब पुलिस वो भी तो मतलब हिफाजत के लिए बैठे हैं ना। हम पहले ही पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज किस तरह खराब किया गया है आपको भी पता है कि इतने अरसे बाद अगर टीम्स आ रही हैं तो आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि जी रोडों पे निकल के आप पुलिस को मार रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी वही पुलिस वाले हैं ना, तो आप क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा इम्पार्शियल होके, बड़ा न्यूट्रल होके जो फैक्ट्स है ना उस पर बात करनी चाहिए बहुत जिम्मेदारी के साथ, और किसी सिविलाइजेशन को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये बात अलग है। सलमान मुजाहिद की तरफ जाएंगे। सलमान, दो एक बातें जो है ना मुतजाद सामने आ रही है। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से भी बात आई है। दूसरी तरफ ये चीज़ सामने आती है कि आप ये कहते हैं कि हम वजीर आज़म साहब की ये कामयाबी है अगर ये कानून जो है कालादम करार पाया। एक तरफ ये आपने काम किया, वजीर आज़म की कामयाबी आप कहते हैं, एक तरफ जो है तहरीक इंसाफ जस्टिस गुलजार साहब को खराज तहसीन पेश करिए। कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है, ये इसको कुछ तो आप डिफाइन कीजिए कि ये क्या हुआ है, अचानक से जो फैसला हुआ है, ये इसके पीछे क्या महरकात हैं? देखें सना साहिबा, क्योंकि मैं पेशे से एक लॉयर हूँ और अपीयर होता हूँ हाई कोर्ट में भी, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो रिजर्व फैसले होते हैं तो जजीज के ऊपर डिपेंड करते हैं वो कब उसका फैसला करते हैं। अभी तो जैसे मैंने मुस्तफ़ा कमाल के साथ मैंने जो पिटीशन की थी आर्टिकल 62-63 की, उसका जो है वो आर्ग्यूमेंट दिसंबर 2020 में हो गया था, लेकिन इसका जो फैसला किया जस्टिस अली मजहर साहब ने, जो अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए, मोहम्मद अली मजहर साहब, उन्होंने जून 2021 में उसका फैसला। तो ये तो एक रूटीन मामला है। अच्छा चलें, इसको अब जस्टिस गुलजार साहब चले गए, उनका साइड पे रखते हैं। देखें, जजीज नहीं बोलते, जजीज के फैसले बोलते हैं और उनके फैसलों पे हर शहरी को इसका हक भी है। सर, पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है कि बुलवाया गया है उनसे ये फैसला। देखें, अब हम अगर ज्यादा बात करेंगे तो कहीं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में ना आ जाए, मुझे तो ये नहीं है। तो मैं समझता हूं, वो भी उन्होंने ये बात की, मैंने भी कल ये बात उनसे कही थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी का मौका भी ये सामने आया है कि अब तो वो सीट पे नहीं है, तो अब तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें की हैं, तो अब तो हम कहेंगे खुल के कि ये जो करवाया गया है। आप ये वजीर आजम साहब की कामयाबी क्यों कहते हैं? आप कह नहीं है हमारी कामयाबी। सना साहिबा, अगर आप मुझे अलाउ करें और लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट फॉर अ व्हाइल फॉर अ मिनट एंड फॉर तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। देखिए, इमरान खान साहब ने जो पीटीआई ने जो पिटीशन की थी अलोंग विद आवर पिटीशन, वो अभी तक पेंडिंग है, उसका अब तक कोई फैसला नहीं है। इमरान खान साहब और असद उमर साहब उसमें पिटिशनर है और यही उनका आर्टिकल 140 है, लेकिन उसका भी फैसला नहीं है, वो आने वाले दिनों में शायद आ जाए। लेकिन अगर हम कराची पे आते हैं, कराची की सियासत पे आते हैं सना साहब है, तो इसी शहर में पिछले साल हजारों मोबाइल जो है वो स्नैच किए गए। जो डेटा है पुलिस का, सैकड़ों गाड़ियां जो है छीनी गई हैं और लापता हो गई, चोरी की गई हैं। इसी तरह से कई मासूम जानों को, नौजवान बच्चों को यहाँ पे डाकुओं ने, स्टेट क्रिमिनल ने उनको जो है कत्ल कर दिया। क्या पुलिस का सिर्फ यही काम रह गया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट असेंबली, जिसका हक हमें आईन पाकिस्तान आर्टिकल 16 में देता है कि आप जाएं, बैठें और आके आ जाएं, लेकिन ना हमारे पुलिस ने फिर वो जो एक वहाँ पे दहशतगर्दी की। लेकिन जंगों में भी जो ये उसूल होता है सना साहिबा कि बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को स्पेयर किया जाता है, लेकिन शहर कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। मैंने भी आपको एक फिगर दिया, कारें यहाँ पे छीनी, यहाँ पे कत्ल किया गया। तो पुलिस का काम तो, असल काम तो ये है कि क्राइम को रोकें, क्रिमिनल्स को पकड़ें, एफआईआर करें, थाने में लेके जाएं और उनको जो है कोर्ट से सजाएं दिलवाएं। वहां तो उनका नहीं चल रहा मामला, लेकिन औरतों और बच्चों पे जो शेलिंग भी की गई, जिसकी हम मजीद मजम्मत करते हैं, और उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। और फिर इल्जाम भी हमारे सर कि जी वो हमारे लोगों ने डंडे मारे। जी आपने हमारे लोगों को काबिल कहाँ छोड़ा था वहां पे? जिस किस्म की टीयर गैस वहां पे सोफिस्टिकेटेड थी वो बहुत ज्यादा, जिस तरह से हमारी आंखें जली हैं, जिस तरह से हमारे अंदर उसका जो धुआं हमने इनहेल किया है, वहां पे आप यकीन जानेंगे 4-5 मिनट के लिए तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन बातचीत हो रही थी, नासिर शाह से बात हो रही थी, अपना एक दो लोगों से बातचीत हो रही थी, और इससे पहले भी हम जा चुके हैं। हमारी जो बहन आपके साथ बैठी है तहसीन आबिद साहिबा, वो भी हमारे साथ थी, और वैसे भी हमने पहले भी धरने दिए हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद
कोई बाहर से अंदर आ जाता, कोई अंदर से बाहर चले जाए, तो मुज़ाकरात होते आ जाते। आज भी ये प्लान था हमारा, लेकिन चले हैविंग सेड दैट जो भी है इसका मामला आगे इसको लेके जाएंगे। PSL के खिलाड़ियों के टीम के उसमें पर्दे में कवर में ये इन्होंने छुप के ये बात कर ली। लेकिन जहाँ तक आप मकामी हुकूमतों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि इतना डिटेल जजमेंट आने के बाद अब सिंध गवर्नमेंट बाउंड है कि वो अकॉर्डिंग टू दैट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जजमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट टू इम्प्लीमेंट द आर्टिकल 140A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत लेजिस्लेशन करे। लेकिन कल आपने वजीर आला साहब का बयान सुना, जो वाइस राय बन के बैठे हुए यहाँ पे 13 साल से, वो ये कह रहे हैं कि आज जाते जाते गुलजार साहब ये फैसला कर गए, क्या वजीर आजम के इख्तियार भी उनको दे दें, क्या वजीर आला की कैबिनेट के इख्तियार भी उनको दे? नहीं जी, हम आपके इख्तियार तो नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि 140 के तहत जो मकामी हुकूमत के इख्तियार हैं, अल्लाह के वास्ते सिंध में वो दे दें। और हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, हैदराबाद की, मीरपुर खास की, सक्कर की, नवाब शाह की बात नहीं है, पूरे सिंध की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका मौक़िफ़ आ गया। मुझे एक बात बताएं कि इस सिंध काबीना का बल्दियाती कानून पर अपोजिशन जमातों से माहिदे पर अमल दरामद का फैसला, ये अब सिंध काबीना कहती है जी हम अमल दरामद का जो ये फैसला है, ये हम जो अपोजिशन से मुज़ाकरात हुए हैं, खासतौर पे जमात इस्लामी, इस पे बात करेंगे हम, तो उस पे अमल दरामद, ये अमल दरामद का फैसला किया गया है या ये इनकी मजबूरी थी कि करना था इनको? सना साहिबा, अगर आप वो जजमेंट पूरा पढ़ेंगे, मैंने इसे पूरा नहीं पढ़ा, मैंने लास्ट का पढ़ा है, उसका पैराग्राफ जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है उसमें उनको डायरेक्शन दी गई है, और अगर ये इसके ऊपर अमल नहीं करते तो फिर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। प्लस आप देखें कि जिस तरह से इन्होंने अभी जो काला कानून इसलिए कह रहे हैं कि जो रहे से इख्तियार थे वो भी इन्होंने ले लिए, यानी कि जो 2021 में जो अमेंडमेंट की उन्होंने SLGA 2013 में, वो भी इनका बनाया हुआ लॉ है। हम ये कहते हैं कि आप इख्तियार दे दीजिए, आप सारे पावर्स को अपने पास एक्यूमुलेट करा कीजिए। थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, मुशर्रफ साहब ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। अब देखिए, काबीना का ये फैसला है कि उसको मनोहन उसकी असास के मुताबिक, उसके एसेंस के मुताबिक उस जजमेंट के उसको अमल दरामद करें। लेकिन ये कहना कि जब रिव्यू में जाएंगे, रिव्यू में आप क्यों जाएंगे? ये फैसला, ये पावर आपके तो नहीं है, ये पावर जो है अवाम के हैं, अवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा है। जरूरी थोड़ी है कि आज अच्छा सर, आप कोर्ट कचहरी भी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताएं क्या रिव्यू कानूनी तौर पे उनका हक है कि नहीं है? बिल्कुल उनका हक है, जा सकते हैं। तो सर फिर वो ठीक कह रहे हैं ना कि अगर वो जा रहे हैं तो फिर उनको जाने देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं शौक से जाएं, लेकिन कोई इतना उनको कोई फेवर वहां से मिलेगा नहीं इस जजमेंट को देखते हुए। इसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपने जो है, हम भी ये प्रोटेस्ट भी इसलिए कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसलिए कर रहे थे, और रोड्स पे भी इसलिए आए थे कि फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑन द आर्टिकल 140A। समझने की बात है, उनको एम्पावर करना है आपने, उनको फंड देना है आपने जो है वो जो आपको NFC का पैसा मिलता है वो कागजों में तो आप दे रहे हैं मकामी हुकूमतों को, लेकिन वो वजीर आला साहब अपने पास रख के बैठे। अभी जो तरमीम की है उसमें उन्होंने मेयर को ये कहा है कि आप 1,99,00,000 से ज्यादा को कोई मनसूबा आप नहीं दे सकते, और उसकी भी परमिशन आपने जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से लेनी है। यही काम जो है पिछले मेयर के साथ होता रहा, फंड नहीं दिया। जैसे मेयर साहब चले गए, मुंतखब नुमाइंदे चले गए, एडमिनिस्ट्रेटर को बिठाया उन्होंने, डिप्टी कमिश्नर को, और उनको फंड देना शुरू कर दिया। अब वो फंड जो है वो करप्शन की नजर हो गए। अभी आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, म्युनिसिपल कमिश्नर DMC मलिर का, मसरूर मेमन और उसके 2 अकाउंटेंट, उनके घरों से कौन सी ऐसी करेंसी है जो नहीं निकली? डॉलर निकला, पाउंड निकला, रियाल निकला, दिरहम निकला, सोने के बिस्किट निकले, पैसे निकले, मतलब करोड़ों रुपए का माल निकल गया था। अंदाजा करें सना साहिबा, एक छोटे से लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर के घर से जब ये निकल रहा है इतना बड़ा खजाना, तो ऊपर जो बैठे हैं, जो हुकूमती सतह पे जो बैठे हैं, उनके पास कितना जा रहा होगा? असल में इशू ये है कि बल्दियाती इदारों को सिंध में अपने काबू में रखना है, और मैं ये भी याद दिलाता चलूं। अच्छा सलमान, एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन मैं उससे पहले बात करूंगी तहसीन की तरफ, मैं ब्रेक के बाद आऊंगी। जब इतने ही करप्ट लोग हैं, इतना ही मसला है, तो फिर ये इनको वोट मिलते कैसे हैं? ये काबीना में इनका अददी नंबर ज्यादा कैसे है? एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, तहसीन की तरफ चलेंगे। जी तहसीन, आपके बारे में इल्ज़ाम लगता है आपकी पार्टी के हवाले से बड़े करप्ट हैं, पैसा भी निकला घर से, और आप जो है वो 18वीं तरमीम को मानते भी हैं, उसके पैदा करने वाले भी हैं, उसके बावजूद आप ग्राउंड लेवल रूट पे जो है वो आप इख्तियारात नहीं देना चाहते, फिर आप इक़्तिदार में कैसे आ जाते हैं? ये बड़ी आप पार्टी कैसे बन जाते हैं? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि हम कैसे जो है इक़्तिदार में आ जाते हैं। डेफिनेटली हमारे पास मैंडेट होता है, लोग हमें वोट देते हैं। आप किसी भी
पसंदीदगी का नापसंदीदगी का क्राइटेरिया क्या होता है? वोट ही होता है ना एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि जी अवाम आपको किस तरह मैंडेट देते हैं. फिर सलमान साहब ने जो बातें की, मतलब मुझे बड़ी इमेच्योर बातें उनकी लगी. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जी करप्ट पार्टी है, ये है. हम जब हमारी हुकूमत आई, ये हमारे साथ एलाई रहे हैं. अब पूरा जो है पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इतने ही करप्ट थे. क्यों एलाई होते थे? क्योंकि आपको हुकूमतों में रहने का शौक है. अभी भी आप देख लीजिए कि कराची के लिए बात नहीं होती. 186 अरब के पैकेज की बात हुई, नहीं मिला तब भी बैठे हुए. मिसिंग पर्सनस की बात हुई कि कराची के बेटे लापता हैं, उठाया उन्होंने, कोई बात की उन्होंने, आराम से बैठे हुए. सेंसस की बात हुई थी, आराम से बैठे हुए. फिर 11 अरब के पैकेज की बात हुई, आराम से बैठे हुए. निकल किस में रहे? सिंध गवर्नमेंट के बुक्स में. भाई हम नहीं कह रहे, मैं ये बात कभी भी नहीं कहती सना कि हम बड़ी 100% परफॉर्मेंस हैं. जहां हमारे फ्लॉज हैं, हमें बेहतरी की जरूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी करने की. लेकिन आप मुसलसल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए आप इस शहर के साथ, इस सूबे के साथ कितने सिंसियर हैं, वो आपको एनएट 49 के इलेक्शन में अवाम ने बता दिया, कंटोनमेंट इलेक्शन में बता दिया. हम कितने सिंसियर हैं कि हमारे कंटोनमेंट में 3 सीट्स थी, इस दफा हमने 12 सीट्स ली हैं, ये 15 से 3 पर आए. तो अवाम अपना फैसला सुना चुके हैं, अवाम देख चुके हैं कि कौन इस शहर के लिए, सूबे के साथ सिंसियर है, कौन काम करना चाहता है. ये 10,000 इल्जामात लगा लें, इनके इल्जाम लगाने से हमें या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रियलिटी बेस्ड बात करनी चाहिए. जो हकीकत है वो अवाम जानते हैं. मतलब हद हो गई है, मतलब लड़ाई की लिसानियत की सियासत करके, महाजिर कार्ड खेल के. भाई सबको साथ लेके चलना है. देखें जो पठान, आपको केपीके में पठान उतना नहीं तो कम से कम उसका आधा तो कराची में मिलेगा. गिलगिस्तान से ज्यादा गिलगिती आपको यहाँ मिलेगा, बलोच यहाँ मिलेगा. तो आप सिर्फ एक उसको लिसानियत की बुनियाद पे आप तमाम लोगों को निकाल नहीं सकते. रहना साथ ही है, जब साथ ही रहना तो अच्छी तरह रहिए, अच्छे तरीके से रहिए. लड़ झगड़ के रहने का क्या फायदा? पहले नुमान ने कहा कि मान लें जी 2 इकाइयां, आप मान नहीं रहे, तभी तो मसला आप कुछ कर नहीं सकते. माने बगैर आपको कोई गुजारा भी नहीं. अगर आप चाहते हैं कि जी अलग हो जाए, ये हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है. कभी भी अल्लाह न करे ऐसा होगा नहीं. रहना साथ ही है. अब चाहे लड़के रहें, चाहे मोहब्बत से रहें, आपको फैसला करना है. ये चलें जी, नुमान की तरफ आते हैं. नुमान, ये क्यों इक़्तिदार में आ जाते हैं? कितनी आप मुखालफत कर रहे हैं उसके बावजूद? वो ठीक कह रही है, उनको आवाम मुंतखब कर रही है, तभी तो वो यहाँ पहुंच रहे हैं. असल में सेंसस हो जाते हैं, मर्दमशुमारी हो जाए तो मैं समझता हूँ शहर की आबादी डबल होगी. 3 करोड़ 3 करोड़ आबादी है इंटीरियर से, तो बात फैसला हो जाएगा. और ये ताना जो दिया गया था कि आप अक़लियत में हैं और हम अक्सरियत में हैं, पर वो ताना तो आज माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लपेट के रख दिया, तय करके दे दिया इनको. कहने की बात ये है कि पीएस पार्टी को देखें, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पीएस पार्टी को चाहिए कि इस जो शहर सिंध के अंदर जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं उनको साथ लेके चलो. क्यों बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो आप क्यों दूरियाँ पैदा कर रहे हो? हमारी बहन है तहसीन आबदी बाजी, अब ये माशाल्लाह पीएस पार्टी में चली गई हैं, तो क्या इनके ऊपर कोटा सिस्टम लागू नहीं होगा? क्या ये पक्की सिंधी हो गई? सिर्फ ये सवाल है मेरा इनसे. क्या अब आप कहीं जॉब के लिए, कहीं स्कूल के लिए आपके बच्चे, आपके खानदान वाले जाएंगे तो कोटा सिस्टम आप पे लागू नहीं होगा बीबी? देखिए हम तो सिंध में रहने वाले हैं, सभी सिंधी हैं, चाहे उर्दू स्पीकिंग भी है तो सिंधी है ना. बराबरी की बुनियाद कहाँ है तो बोल रहे हैं ना. बराबरी की बुनियाद कहाँ पर है बीबी? आप मुझे बताइए. मुझे लग रहा है नोमान भाई एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपके 2 नुमाइंदे एमक्यूएम के लिए ये कह रहे हैं कि हम उर्दू बोलने वाले, अगर उर्दू बोलने वाले की बात की जाए तो वो एमक्यूएम का, इसका मतलब है पूरा शहर एमक्यूएम का है. नोमान भाई कोटा सिस्टम पीपल्स पार्टी ने लागू नहीं किया था. ये सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके जाऊंगी. कहा कि इस शहर में गिलगित का भी बंदा रहता है. एमक्यूएम का टेन्योर आया मुशर्रफ के दौर में, जो है तमाम हाथों आपके घी में, क्यों नहीं खत्म किया आपने? मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए कि देखिए बराबर पीएस पार्टी को चाहिए कि गले लगाओ, बराबरी की बुनियाद पे फैसले करो. पीपल्स पार्टी तो सबको लेके चल रही है नुमान भाई. क्या कर लेना, एक नोटिफिकेशन है. लेकिन नुमान तहसीन ने ये कहा कि यहाँ पे बलोच भी रह रहा है, यहाँ पे जो पठान भी रह रहा है, यहाँ पे गिलगित वाला भी रह रहा है. आप सिर्फ देखिए मुस्तकिल बाशिंदों की मैंने बात करी. देखिए सुनिए, मुझसे ज्यादा इनको पता है सारी बातें. मैं मुस्तकिल बाशिंदों की बात कर रहा हूँ जो सिंध में 2 इकाइयां हैं. देखिए पूरे मुल्क में किसी भी सूबे में इस तरह की डायमेंशन और इस तरह की ज्योग्राफीज और इस तरह का माहौल नहीं है जो सूबा सिंध के अंदर है. तो जब इस तरह का माहौल है, बहुत सेंसिटिव माहौल है, तो इस सेंसिटिव माहौल में बड़े होने का, बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए गले लगा के चलो, मिल के चलो. क्या जरूरत है दूरियां पैदा कर रहे हो? कल कला को वो अगर चले जाते हैं, फर्ज करें अभी सूबे की बात हो रही है, मौत दिखा के बुखार पर राजी कर लें, वफाक में दे दें, क्या करेंगे आप? मतलब थोड़े के चक्कर में, पूरे के चक्कर में थोड़े से भी जाएंगे. समझें बात को. आप लोग कब तक बेवकूफियां करेंगे? लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि कौन सा आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप सिंधी हो गई, अब आप बराबरी की बुनियाद पे शहरी हैं पीएस पार्टी में जाने से. देखिए हम तो ये लिसानियत की सियासत करते नहीं. मैंने पहले ही बात की थी, हम लिसानियत की सियासत नहीं करते. हम देखें जहाँ पे हम ये बात भी गलत नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कराची वालों को जॉब्स नहीं दी जाती. आपको पता है सना सीएसएस में अभी जो एग्जाम्स हुए थे लास्ट, आप उसमें देखें कि कराचीइट्स कितने उसमें जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके हमारे नौजवान को बज़न किया गया कि वो अपियर ही नहीं होते उन एग्जाम्स में. अब जब कोई इंसान अपियर नहीं हो रहा है और इंटीरियर
इंटीरियर से लोग अपेयर होके आ रहे हैं तो हम इसको कहें कि नहीं वो लोग आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? भैया अपेयर तो हो, आप उस इम्तिहान का पार्ट तो बने, आप पार्ट तो बने। नहीं आप अपने सोच से चल रहे हैं, तो मैं आपकी समझ पे बस मैं क्या बोलूँ, अब मैं तो वही बोलूंगी जो रियलिटी है, आप कुछ भी समझे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी इसमें तो कोई बुराई दो राय है जी। चलिए जी, सलमान की तरफ आते हैं। सलमान, आपको क्या लगता है, एक सियासत से हटके एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगी स्पेशली, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ने के आगे जितने मुखालफिन हैं उसमें उन्होंने एक छोटा मुखालिफ होता है, एक बड़ा मुखालिफ होता है, तो उन्होंने छोटे मुखालफिन को गले लगा लिया है और जो बड़े मुखालफिन हैं उसके खिलाफ अभी भी बातें हो रही हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें सना, इशू ये है कि कराची के जो लोग हैं, कराची की अवाम 35 साल से 30 से 35 साल से एमक्यूएम के साथ है, एमक्यूएम को वोट भी देते हैं और एमक्यूएम को ताकत भी देते हैं। जमहूरियत में यही होता है। और पीपल्स पार्टी का दुख ये है, जो हम समझ सकते हैं कि कराची के लोग, हैदराबाद के लोग उन्हें शहरी इलाकों में वोट नहीं देते। अब होता क्या है, जैसे अभी मेरे भाई नोमान ने कहा कि उन्होंने ये असेंबली में खड़े होकर कहा कि आप अक़लियत में हैं, अक़लियत में ही रहेंगे, हम अक्सरियत में हैं, तो अपना जो हमारा जो हुक्म होगा हम आप पे जो है थोपेंगे, बिल्डोज करेंगे आपकी बातों को। और इस किस्म के मामला करके फिर कराची के अवाम से बदला लिया जाता है। अब आ जाते हम मैंडेट की बात की इन्होंने कि जी आपने बल्कि क्वेश्चन पुट किया था बिफोर गोइंग टू ब्रेक कि जी वो किस तरह से जीत के आ जाता। मैं 2018 के इलेक्शन के बाद एक हाई प्रोफाइल शख्सियत से मिला था, नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो अब नहीं है यहाँ पे, चले गए इस्लामाबाद। उन्होंने कहा था कि जी वो कराची में तो हमने कर लिया जो करना था, मतलब जो हमारी 14 सीटें थी वो उन्होंने जिसको देनी थी दे दी, लेकिन इंटीरियर सिंध में हम पीपल्स पार्टी के साथ कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने दबा के धांधली की, दबा के मामला किए और हम उनको नहीं रोक सके। कैसे रोकेंगे आप? देखें, इंटीरियर सिंध में एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी की लगाती है, वहाँ पे पुलिस वाले पीपल्स पार्टी लगाती है, वहाँ पे सिविल ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी लगाती है, और फिर अपनी मर्जी करते हैं वो जो करने का। अच्छा, इस दफा उन्हें 18वीं तरमीम का समर ये मिला कि उन्हें जो है 10 सीटें ज्यादा मिल गई इंटीरियर सिंध से, लेकिन जो मामला शहरी इलाकों के साथ रवा रखे जा रहे हैं, हम तो कहते हैं चले आप कराची में ना करें, आप जो है दलील से बात कर रहे हो, दलील से हमारे सवाल का जवाब में आप हमें अगर मुतमईन कर देते हैं हम मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन अवामी तहसीन ने भी एक दलील दी है, सलमान थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको, तहसीन ने एक दलील दी है। तहसीन ये कह रही है कि आप लोग सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप अपने मसले आपने कौन से वजीर आजम साहब से हल करवा लिए, आपके ऑफिस के मसले हों या कोटा सिस्टम वाली बात हो या और बहुत सी मिसिंग पर्सन की बात हो, तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके हवाले से कह रही हैं कि अभी तक ये मसले हल नहीं हुए हैं, वो भी दलील से बात कर रही हैं। चले, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना मेरी पार्टी को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि सेंसिस का जो इशू था, जो कराची की आवाम को 1,51,00,000 दिखा दिया गया पिछले सेंसिस में 2017 के, एमक्यूएम ने उस पर भरपूर अपना मुकदमा लड़ा और कैबिनेट ने इस पर डिसेंट नोट दिया। और अभी जो है असद उमर ने अनाउंस कर दिया है कि नया सेंसिस जो है 2023 से पहले हो जाएगा। जैसे अभी नोमान ने कहा, जैसे नया सेंसिस फ्री एंड फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर होगा, उसके बाद जब शक्ल निकल के आएगी शहरी इलाकों की आबादी इतनी है, उसके बाद फिर उसी तरह से डिलिमिटेशन होगा नेशनल असेंबली की सीट्स का और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स का। लेकिन देखें ना, बात ये कि हमने तो बीच में कोशिश की, यही जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 88 में जब इलेक्शन जीती अपनी हुकूमत बनाने के लिए चल के 9 सलमान, मैं आप ही को मौका दे रही हूँ, मैं आपसे बहुत कुछ सुनना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है तो मैं बहुत सारे सवालात भी आपसे करना चाह रही हूँ। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, ये आगे जो बल्दियाती इलेक्शंस होने वाले थे उसके लिए जो लिस्टें जारी थी उसमें घरों में अभी से जो लोग आ रहे थे और लिस्टें प्रोवाइड कर रहे थे, 2007 की लिस्ट इस्तेमाल हो रही है अभी भी, 2007 की। ये किसकी जिम्मेदारी थी, कौन कर रहा है ये किसकी जब आप कहते हैं जी नए सेंसेस होने जा रहे हैं, चीजें नहीं होनी जा रही है, तो रिकॉर्ड के लिए भी ना 13 ना 18 7 की लिस्टें अभी भी घरों में प्रोवाइड की जा रही हैं। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, थैंक यू सना कि आपने मुझे रिमाइंड कराया। देखिए, जो डिलिमिटेशन कमेटीज जो बनी है वो इलेक्शन कमीशन ने सिंध गवर्नमेंट को कहा था, सिंध गवर्नमेंट ने अपने जो है वो नुमाइंदों को यहाँ से भेजा, और 2011 और 12 का एक जजमेंट है हाईकोर्ट का जिसमें फरोग नसीम साहब अपीयर हुए थे, और उसके बाद ये जो सिंध हुकूमत अपील में गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस बात को हेल्ड किया कि हम उस पर गए थे कि डिलिमिटेशन कमेटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होगा, माना कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर या मुख्तारकार, उसमें से कोई भी नहीं होगा उसमें, और वो हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। फिर यही बात सिंध गवर्नमेंट हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे हक में आया,
لیکن اب جب کہ یہ معاملہ ہے 2020 میں ہم نے پھر ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے کہ یہ ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اب وہ پینڈنگ ہے ہمارا. لیکن ابھی جو ڈیلیمیٹیشن کمیٹیز بنی ہیں اس میں بیسیکلی جو ممبران ڈالے گئے ہیں وہ تو سندھ حکومت نے ڈالے، تو لازمی بات ہے سندھ حکومت تو یہی چاہے گی، پیپلز پارٹی کی حکومت یہی چاہے گی کہ ایک دفعہ سے پھر کراچی کے جو لوگ ہیں، کراچی کی جو حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو سنا کہ جب انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی 26 ٹاؤن ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنے کہیں جو ڈیلیمیٹیشن کیا ہے وہ 25 ٹاؤن کا کر دیا. اسی طرح سے KMC کی یوسی دو سیٹ، اور یہ بھی ایک جو ہے وہ لا ہے، عمل اس پہ نہیں کیا گیا کہ 65,000 پہ پر یونین کونسل ہوگا یا یونین کمیٹی ہوگا یا اس پہ وارڈ ہوگا، اس پہ بھی عمل نہیں کیا. کہیں پہ انہوں نے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 80,000 پہ جو یوسی بنا دی اور تعداد کم کر دی، ایسٹ میں انہوں نے یہ کر دیا، سینٹرل میں انہوں نے جو سیٹیں کم کر دی، کہیں پہ انہوں نے جو ہے وہ 70,000 پہ بنا دی. یہ بھی وائلیشن ہے اور ہم نے کل ہی اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے. سلمان آسان زبان میں ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر یہ 2007 کی لسٹ اگر ابھی بھی پرووائڈ ہو رہی ہے تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ خود ہمارے گھروں میں بھی جن لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جو ملک سے باہر جا چکے ہیں، کچھ لوگ شادی کر کے دوسرے شہروں سے یہاں پہ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا نام موجود نہیں ہے اور ان کا نام اندراج کروانے کا کوئی طریقہ بھی ابھی تک نہیں ہے. 2007 کی لسٹیں دی جا رہی ہیں تو یہ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ اس ایشو کو ہم پرسو کر رہے ہیں اور ہم نے مختلف اس 2 مہینے میں جو ہے کافی شکایتیں بھیج چکے ہیں الیکشن کمشنر کو اور ہائی کورٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ معاملہ آرٹیکل 140A والا جو امپاور کرتا ہے لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو، تو یہ مسئلہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ہماری جو پٹیشن ہے ہائی کورٹ میں اور سینسس کی پٹیشن ہماری سپریم کورٹ اب بھی اسٹل پینڈنگ ہے، اسی کے مطابق ہوگا. اور دیکھیں 2015 میں بھی جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا سندھ میں اور کراچی میں، وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ کے حکم پہ کرایا گیا تھا. پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہی ہے، وہ کبھی بھی اپنے تئیں جو ہے وہ اپنے طور پہ الیکشن نہیں کراتی. آپ نے بات کی لسانیت کی، آپ نے بات کی نفرت کی. نفرت کا بھی کس نے ڈالا 1971 میں؟ آپ نے جو ہے یہاں پہ کوٹا سسٹم رائج کیا، آپ نے اردو کا اور دیہی کا صرف اپنے جو لوگ تھے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اس کے بعد آپ نے 79 میں جو جب آپ کا راج تھا اس وقت آپ نے کوٹا سسٹم کی بات کی تھی سر؟ جی تھا نا جب آپ کو کراچی کی عوام مان رہی تھی، جب آپ کا بول بالا تھا، اس وقت آپ نے کوٹا سسٹم کی بات کی تھی؟ جی ہماری قرارداد تو سنا اب بھی نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے، اسی اسمبلی میں دوبارہ ہم نے دی ہے. لیکن بس وہ آپ کو پتہ ہے کہ کرنا جو ہے وہ فیڈرل کا کام ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہماری ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے اور انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم نے جو ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی ایک نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں جہاں پہ بھی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک ہیومنلی ان کو کنٹرول کرنا، ان کو سرو کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہم نے کہا کہ جہاں ضرورت محسوس کرتے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں اور دیکھیں نا یہ شہر کراچی ہے. چلیں سلمان، آپ کا موقف آ گیا اور گیسٹ بھی موجود ہیں. سیدہ تحسین عابدی صاحبہ، پروگرام کا وقت کچھ کم ہے، آپ سے جلدی میں سلمان بھائی کا کہوں گی کہ سلمان بھائی کی انفارمیشن بہت ویک مجھے لگی. کوٹا سسٹم جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کے جو دور میں ہے اس وقت نافذ کیا گیا تھا. اس کے بعد ایوب خان صاحب کے دور میں اس کو دوبارہ سے جو ہے بڑھا دیا گیا تھا. یحییٰ خان صاحب کے دور میں مزید بڑھا دیا گیا تھا. تو پیپلز پارٹی پہ اس کا آپ نہ الزام لگائیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، ان کو پتہ ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے سینسس کی بات کی. سینسس کو 19 اپریل 2020 میں پی ٹی آئی نے جب اپروو کیا تھا تو ایم کیو ایم ان کے ساتھ کھڑی تھی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کورٹ میں بھی گئی ہے، اس کے اگینسٹ بات کی ہے کہ سینسس صحیح نہیں ہوئے تھے، ہم اسے نہیں مانتے، دوبارہ ہونے چاہیے. یہ بات بھی شاید ان کو نہیں پتا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لائر ہیں ماشاء اللہ سے، ان کو پتہ ہونی چاہیے تھی. باقی سلمان بھائی جو باتیں کر رہے ہیں، جو الزام کر رہے ہیں، میں بتا رہی ہوں کہ عوام ان کے سامنے لے کے آ رہے ہیں چیزیں، ان کی ہر ناکامی کہ کس طرح. آپ نے جو سوال کیے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. آپ ریئلٹی بیس ایک سوال کر رہی ہوں، کہہ رہے سرٹیفکیٹ نہیں. مطلب آپ کے 11 کلوزز تھے جب آپ پی ٹی آئی کے ایلائی بنے تھے، اس میں سے کوئی ایک کلوز بتا دیں. اس میں اربن سندھ میں یونیورسٹیز کی بھی بات ہوئی تھی، سینسس والی بات بھی ہوئی تھی، باقی میں نے چیزیں بتا دی آپ کو. کوئی ایک چیز یہ منوا نہیں سکے. ہمارے دور میں سنا جب یہ تھوڑے سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھے تھے، ایم کیو ایم 4 دفعہ ہم سے الگ ہو کے ناراض ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم نے ریٹ کیوں بڑھا دیا. آج کیا ختم ہو رہا ہے. نومان آخری کامنٹ بہت اچھی بات کری انہوں نے کہ دیکھیں ایم کیو ایم کو بھی بات سوچنی چاہیے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، 10 چیزیں ہیں، لیکن وفاق پہ جو ہے کوئی پریشر نہیں. یہ بات سمجھ آتی ہے، بات اچھی کر رہی ہیں. ایک اور بات بولی کہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے انہوں نے لیاقت علی خان سے شروع کیا
اور یحییٰ خان ایوب خان اور پھر دوسرے لوگوں کو لے آئے. میں کہتا ہوں سب لوگ جو ہیں میں نے مان لیا کہ وہ ناکام ہو گئے, ان کو احساس نہیں ہے شہر کا, لیکن پیپلز پارٹی تو فرشتہ ہے, وہ احساس کر لے. بہت شکریہ نعمان, بہت شکریہ تحسین, اور بہت شکریہ سلمان مجاہد صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ تمام پارٹیز مل کے کراچی کے حل کے لیے بات کریں. یہ سوال اس وقت نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کس کی جیت ہوئی کس کی ہار ہوئی. سوال یہ ہے, ابھی یہ مدعا یہ ہے کہ کراچی کے عوام کے مسائل کا حل ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.